as well. So what I'm going to share with you a small little example of the different kinds of situation in which people have benefited. तो एक मैं लोगों का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करना चाहूंगा. So just give me a second so that we can relate. Many of those things would be relatable as well, I suppose. आप लोगों को लगेगा कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोगों ने भी फेस करी हैं या थायराइड से रिलेटेड सिचुएशन में आने के बाद में आपने फील करी हैं अपने साथ या अपने नियर एंड डियर वन के साथ. जस्ट गिव मी अ सेकंड. ऑलराइट, मीनवाइल व्हाइल आई ओपन दिस, आप लोग अपना कोई अगर सवाल स्पेसिफिकली पूछना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं. सो आई विल ट्राई एंड एड्रेस दैट एज वेल. Okay. Right. Okay. So let's start with the session right away. Yeah. Can I heal eye floaters? Eye floaters, I don't know, but आप रहिएगा सेशन में and स्वामी जी can. My latest TSH was still, yes, it is very high, Bilal. Bilal, you are already in a program, so you might consider this as well. So it can go hand in glove as well. तो आप ये चाहें तो ये भी देख सकते हैं. So this also will help you, by the way. So you can think about this as well. Or I would like to welcome Swami Ji, Swami Raj Vibhu. So Swami Ji has dedicated his entire life to understand how human mechanics work. बॉडी कैसे काम करती है, बॉडी को कैसे नेचुरली समझा जा सकता है और नेचुरली हील किया जा सकता है. सो we would talk about kumbhak, we would talk about kumbhak therapy, we would also talk about different things that you can do to naturally build your ability to come out of chronic conditions. So I would like to welcome a very rare person, an individual who has uniquely taken this objective as his life goal pretty much, to help people come out of many conditions. So Swamiji, over to you, sir. Am I audible? मेरी आवाज आ रही? Am I audible? Nobody is replying. Okay. आप लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा सर. You have to type in yes, you have to show a thumbs up. तो लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो लाइफ होगी कैसे अच्छी? If you don't involve in your life with life around you, how will life happen to you? So thyroid, hypothyroidism, hyperthyroidism, thyroiditis, Hashimoto, Graves, ऐसे ऐसे कुछ नाम आपने सुना हो. So what is that? ये है क्या? What is the issue? You've gone to a doctor, doctor tests your blood for T3, T4, TSH. There is some problem with T4, T3, TSH. ऐसा कुछ है? ऐसा ही हुआ ना? Now some problem with T3, T4, TSH. So what do? Solution क्या है? You take a synthetic T4, tetrahydrothyronine ले लेते. So tell me one thing. If your supply line, water supply is blocked, बंद हो गया आपका वाटर सप्लाई, एमसीडी ने बंद कर दिया या इस तरीके से किसी ने, I call a water tanker, fill up your tank with water. Does it fixes your water supply? इससे क्या आपका पानी आना शुरू हो जाता है? If you put water in your tank, तो उससे पानी आना शुरू हो जाएगा क्या? So if you put in T3, T4 and it shows you your levels okay, तो आपका सप्लाई ठीक हो गया क्या? Is your thyroid fixed? Thyroid strong हो गया? Anybody symptom gone? किसी के symptom जाते हैं क्या वो दवाई लेने से?
No. So if your thyroid gland is not functioning properly, are you doing anything to fix your thyroid gland? Anna, you are not doing anything. So let us take it very simply. Some disease, some problem, कोई भी problem आ गई, there is some organ related to it. कोई organ है, like thyroid organ. Now it has become weak in terms of functioning. काम काज में वो कमजोर हो गया, या तो ठीक से हार्मोन रिलीज नहीं कर रहा है, या तो ज्यादा रिलीज कर रहा है, वो बैलेंस में नहीं है. So there is some weakness in the functioning. What is the solution? अगर थायराइड वीक हो गया तो सोल्यूशन क्या है? थिंक फ्रॉम अ चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू. बच्चे के दिमाग से सोचो. इफ समथिंग हैज बिकम वीक इनसाइड यू, आपके अंदर कोई चीज कमजोर हो गई है, व्हाट इज द सोल्यूशन? स्ट्रेंथन इट, उसको मजबूत कीजिए. इज देयर एनी अदर सोल्यूशन? उसको खत्म करो. अच्छा, आई एम रीडिंग इट. खत्म करो नहीं, फिर तो हम खत्म हो जाएंगे. इट हैज बिकम वीक. कोई चीज कमजोर हो गई, उसको स्ट्रांग करो, मजबूत करो. ठीक है ना? नहीं, रूट कॉज के अभी नहीं जा रहे. वी विल गो देयर. लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. उसके बाद सी व्हाट यू डू विथ योर लाइफ इज योर चॉइस. जो आप जीवन के साथ में करते हैं वो आपकी चॉइस है एंड योर फ्रीडम. बट यू मस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट. आपको पहले समझ में आना चाहिए. देन वॉट एवर डिसीजन यू टेक इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो पहले समझते हैं. लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. सो थायराइड हैज बिकम वीक. थायराइड वीक हो गया. क्या सोल्यूशन? व्हाट इज द सोल्यूशन? स्ट्रेंथन योर थायराइड. थायराइड को स्ट्रॉन्ग करो. इज देयर एनी अदर सोल्यूशन? देयर इज नो अदर सोल्यूशन. सो न्यूट्रिएंट लेके थायराइड स्ट्रॉन्ग हो गया किसी का. ईट प्रॉपर न्यूट्रिएंट. ताहिर, किसका स्ट्रॉन्ग हुआ थायराइड? किसका लिवर स्ट्रॉन्ग हुआ? किसका हार्ट स्ट्रॉन्ग हो गया? आर यू ईटिंग गुड फूड और योर एंसेस्टर्स वर ईटिंग गुड फूड? अपने दादा दादी नाना नानी को याद करो. वर दे गेटिंग गुड फूड और आर यू गेटिंग गुड फूड? यू आर गेटिंग गुड फूड. तो आप तो और बीमार हो गए. वो आपके दादा दादी नाना ने बीमार थे या आप बीमार हैं? आप ज्यादा बीमार हो गए ना. सो अच्छा खाना खा के आपने स्ट्रॉन्ग तो नहीं किया अपना थायराइड. अदरवाइज यू वुडंट बी हियर. यहां पे आप होते नहीं ना. नाउ प्योर फूड, व्हाट डज इट मीन? Now you are eating same food, other persons are eating same food, you are into thyroid. There are some people who don't have thyroid. Same food, impure food. बहुत क्वेश्चन सही पूछेंगे ना तो फिर आंसर सही आएगा. क्वेश्चन सही पूछेंगे तो आंसर सही आएगा. सो फूड डजंट स्ट्रेंथन योर ऑर्गन्स. फूड से आपका ऑर्गन स्ट्रांग नहीं होता. एक्सरसाइज करके होता है क्या? एक्सरसाइज करके होता है क्या? होता है. स्पोर्ट्स के लोगों को थायराइड नहीं होता. पीपल इनटू स्पोर्ट्स डोंट गेट इनटू डायबिटीज, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कैंसर. सही सवाल नहीं पूछ रहे. यू आर नॉट आस्किंग द राइट क्वेश्चन. तो एक्सरसाइज से स्ट्रॉन्ग किया क्या किसी ने? इट सपोर्ट्स. यस, डाइट ऑल्सो सपोर्ट्स. डाइट भी सपोर्ट करता है, एक्सरसाइज भी सपोर्ट करता है, बट दे आर नॉट थेरेपी. वो स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे वापस से. ठीक है ना? तो वन थिंग क्लियर कि बाय मेडिसिन यू आर नॉट स्ट्रेंथनिंग योर थायराइड. मेडिसिन खा के थायराइड ग्लैंड को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा. अच्छा फूड खा के किसी का थायराइड ग्लैंड स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ. बाय डूइंग एक्सरसाइज थायराइड ग्लैंड स्ट्रॉन्ग नहीं होता. देन व्हाट टू डू? क्या करना चाहिए? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. यही हम बात करेंगे. ठीक है ना? यही हम बात करने वाले हैं. सो शुड वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्ट्रेंथ क्रिएटिंग मैकेनिज्म ऑफ दिस बॉडी? इस शरीर का स्ट्रेंथ क्रिएट करने का क्या मैकेनिज्म है? ये समझेंगे. इफ वी अंडरस्टैंड दिस देन वी कैन गो अ लिटिल फर्दर. कैमराज ऑन करो ना. आर वी नॉट इन टॉकिंग टर्म्स? बात नहीं कर सकते क्या? कैमराज ऑन करो ना. We don't care how you look, what is your background, कोई फर्क नहीं पड़ता.
छोटी सी जिंदगी है, लेट्स इन्वॉल्व आवरसेल्फ अ लिटिल बिट, हाँ थोड़ा इन्वॉल्व करते हैं ना, अच्छा लगेगा। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, लेट्स अंडरस्टैंड इट। एक एक लाइन ऑफ अप्रोच हमने पकड़ लिया है, उसके पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट डज इट मीन व्हेन यू से थायराइड प्रॉब्लम। ये इसका मतलब क्या होता है जब आप थायराइड प्रॉब्लम बोलते हैं। सो यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोटीन। एक चीज है प्रोटीन कहते हैं, है ना? किसी ने देखा प्रोटीन? नहीं देखा। बातें वही करते हैं जो जानते नहीं हम। एक्चुअली सारी बातें वही करते हैं, वॉट एवर वी डोंट नो वी ओनली टॉक अबाउट दैट। सो आई एम गोइंग टू प्रूव यू दैट यू आर मोर इंटेलिजेंट एंड वाइज पीपल। आप लोग ज्यादा समझदार हो, ये आज मैं प्रूव करके जाने वाला हूं, ठीक है ना? तो कैमरा ऑन करो इसी खुशी में। यू आर मोर वाइज देन यू थिंक। आप जितना समझते हैं उससे ज्यादा समझदार है, ठीक है? सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोटीन। अगर प्रोटीन नहीं भी आपने देखा कोई बात नहीं, सुना तो है ना, आइडिया लगा लो। क्या कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ये दो है ना, ऐसा सुना होगा। कार्बोहाइड्रेट यू हैवंट सीन ईदर ऑफ देम। ना कार्बोहाइड्रेट देखा ना प्रोटीन देखा, ना आपका बॉडी जानता है कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। वी आर टॉकिंग इन एन एलियन लैंग्वेज, कोई बात नहीं, उसी लैंग्वेज में बात करेंगे बिकॉज यू आर ट्रेन्ड इनटू इट। सो प्रोटीन, सो व्हाट हैज हैपेंड, योर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन मेटाबॉलिक इकोसिस्टम हैज बिकम वीक। आपका प्रोटीन को इस्तेमाल करने की क्षमता जो है ना वो कमजोर हो गई। यू हैव डेवलप्ड एन एलर्जी टू प्रोटीन। लेट्स कोरिलेट, अब इसको कोरिलेट करके देखते हैं। सो प्रोटीन बिल्ड स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाता है। किसी भी चीज को बनाने में प्रोटीन की जरूरत होती है। सो व्हाट यू कॉल एज हार्मोन इज ऑल्सो मेड फ्रॉम प्रोटीन। वो प्रोटीन से ही हार्मोन बनता है। व्हाट इज T3 T4 TSH, क्या होते हैं ये? व्हाट आर दीज? दीज आर हार्मोन्स। ये क्या है? हार्मोन्स। तो आप हार्मोन नहीं बना पा रहे ना यू आर नॉट एबल टू मेक हार्मोन प्रॉपरली। पहली बात यहीं पे आ जाता है, समझते हैं। देन सेकेंड थिंग, दूसरी चीज, हाउ मेनी लेडीज फेसिंग हार्मोनल इशू, मेंस्ट्रुअल इशू, हार्मोनल इशू? कितने लेडीज को हो रहा है? होता है ना? when you get into thyroid, infertility होता है ना, hormonal issue, isn't it a hormonal issue? Estrogen, progesterone, testosterone, ऐसा सुना होगा ना कोई? Nobody know all these things, सुना तो होगा कम से कम। Hormones, you are not able to make hormones. Why? Because your protein metabolic ecosystem has become weak. आपका प्रोटीन इस्तेमाल करने की क्षमता कम हो, राइट? अभी आगे जाते हैं। इंसुलिन सुना? हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड इंसुलिन? सुना ना? इंसुलिन, इंसुलिन, अमाइलिन, लेप्टिन, ग्रेलिन, हाँ ऐसा कुछ 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 सुना हो। सो इंसुलिन से डायबिटीज होता है ना? इंसुलिन नहीं हो तो डायबिटीज। इफ यू प्रॉपर इंसुलिन नहीं बना पाए तो डायबिटीज होगा ना। व्हाट इज इंसुलिन? हार्मोन। वंस अगेन, सो कितने लोगों को डायबिटीज हो रहा है आफ्टर हाइपोथायराइड? हाउ मेनी पीपल हैव गॉट इनटू डायबिटीज और ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन? कई लोगों को हो रहा है, नहीं हो रहा है तो होगा, ठीक है? सो because you will not, your system will not be able to make proper insulin. Not only insulin, amylin, leptin, ghrelin, these are all कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल करने के हार्मोन्स। द इकोसिस्टम ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं सारे हार्मोन, राइट? आगे चलते हैं, लेट्स गो अ लिटिल अहेड, थोड़ा सा आगे चलते हैं। सो व्हाट इंसुलिन डज इज इट टेक्स कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है ना? ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना? तो प्रोटीन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट थिंग्स इन द बॉडी। प्रोटीन का एक और काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना। इफ द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बिकम्स वीक, अगर आपका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कमजोर हो जाता है तो क्या क्या होगा? व्हाट ऑल विल हैपन? हाउ मेनी पीपल फेसिंग कॉन्स्टिपेशन? लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। अच्छा, सेकेंड थिंग, फैट, वेट इशू, फैट ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। थर्ड थिंग, वाटर रिटेंशन, वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। ड्राई स्किन, फ्लेकी स्किन, कितने लोगों को हो रहा है? वाटर ट्रांसपोर्ट नॉट हैपनिंग प्रॉपरली। अच्छा, ब्लोटिंग, ब्लोटिंग कितने लोगों को हो रहा है?
लैक ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, with the lack of transportation all these things happen, ये सारी चीजें होती हैं. So I'll give you one example, एक example लेते हैं. How many people facing thin skin, वो thin hair thinning and hair fall, कितने लोगों को हो रहा है? So hair follicles और बाल की जड़ जो होती है ना, there lies shortest living stem cells, सबसे छोटा stem cells, जीने वाले stem cells हो. They need proper nutrition. They need proper nutrition. तो आपका तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा ना, योर ट्रांसपोर्ट इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली. न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, ड्राई स्किन हो रहा है ना. नाउ डू एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट करो. पुट अ स्मॉल प्लांट इन अ वास, एक गमले में छोटा सा पौधा लगा दे. डोंट वाटर इट, पानी नहीं डालना उसमें, धूप में रखो उसको, पानी नहीं डालना. व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम? द मड विल क्रैक, डेवलप क्रैक्स, मिट्टी में क्रैक्स आ जाएंगे, पानी नहीं है तो, है ना. फ्लेकी स्किन and the roots will not be able to hold the mud, है ना. जड़ पकड़ नहीं पाएगी, उसको कुछ मिलेगा नहीं, पानी खाना, the plant will fall off. यही आपके बाल के साथ में हो रहा है, यही आपके हेयर के साथ में हो रहा है. Not transportation factor has gone weak, nutrient नहीं मिल रहा, and water transport is not happening properly. So hair thinning, why? Because they are not getting proper nutrition and they are falling because they are not able to hold the root. जड़ नहीं पकड़ पा रहे. थोड़ा सा और बात करें इसके बारे में. So if transportation is not happening properly, every organ needs nutrient for repair and function, है ना. हर चीज को चाहिए कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट चाहिए रेगुलर बेसिस पर. तो सपोज योर किचन सिंक गेट्स ब्लॉक, आपके किचन का सिंक ब्लॉक हो गया. व्हाट डू? क्या करते हैं? यू अप्लाई प्रेशर लगाते हैं ना, प्रेशर लगाते हैं. सो टू क्लियर अप द ट्रांसपोर्टेशन ब्लॉक, ट्रांसपोर्ट का ब्लॉक हो गया, उसको क्लियर करने के लिए प्रेशर लगाते हैं ना. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर फेसिंग ब्लड प्रेशर इश्यूज, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, पैल्पिटेशन, हार्ट फ्लटर, कितने लोगों को हो रहा है? So this is what body does for protecting yourself or itself. ये शरीर काम कर रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है अपने आप को बचाने के लिए. It is increasing heart rate so that transportation happens properly. Your organs are not able to function. Transport करने के लिए सब कर रहे हैं. If the transport factor is not happening properly, your nervous system gets impacted. आपके nervous system को impact होगा. So low blood pressure, high pressure, blood pressure fluctuation होता है ना, it goes high and then comes down. For some it remains high, for some it remains low. Blood pressure issue is due to transportation problem. If your heart doesn't get nutrition properly, it not be able to beat properly. वो काम नहीं कर पाएगा अपना पूरा. ठीक है ना? Now correlate with all the problems that you are facing. है ना? You can correlate all the problems with what is happening inside you. क्या प्रॉब्लम आ गई? क्या प्रॉब्लम हो गई? प्रोटीन इकोसिस्टम और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हैज बिकम वीक. प्रोटीन से एलर्जी हो गई आपको, तो ज्यादा प्रोटीन खाओगे और प्रॉब्लम में आ जाओगे. इफ यू टेक इन मोर प्रोटीन यू विल गेट इनटू मोर प्रॉब्लम. नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स सॉल्यूशन. क्या करना है? थायराइड ग्लैंड को स्ट्रांग करना है. प्रोटीन खाने से काम नहीं होगा और प्रॉब्लम आ जाएगी. सो व्हाट यू शुड डू? You should strengthen your thyroid gland, strengthen your protein metabolism, तभी protein metabolism strong होगा. तो strong कैसे करें thyroid को? We don't control thyroid function, हम तो नहीं करवा रहे thyroid function. So how to strengthen thyroid? So let's understand what is the strength creating mechanism of this body. इस शरीर के strength create करने का तरीका क्या है पहले सीख लेते हैं, समझ जाते हैं. Then we'll see how to strengthen the thyroid. Thyroid को कैसे strong करें. So how many people among you have their right hand strong? कितने लोगों का दाएं हाथ strong है? उठाइए. How many people have their left hand strong? कितने लोगों का बाएं हाथ strong है? So how did you do it? कैसे किया? You did it. आपने किया ना? When you were child, when you were born, जब आप पैदा हुए थे तो ऐसा कुछ नहीं था.
You made one hand more strong than the other. How did you do it? So let's do an experiment. पहले experiment करते हैं ना, तब पता चलेगा. How did you do it? Keep your left palm like this. अपने बाएं हथेली को ऐसे रखें. Make fixed fist from the right hand. दाएं हाथ से मुट्ठी बांधे. And push your left palm. अपने बाएं हथेली को धक्का दें. जोर से. Push it hard. Push it hard. एक ही जगह पर रख के opposite push करो. Opposite push करो. You are creating strength. ये आप शक्ति strength पैदा कर रहे हैं ना. How are you creating the strength? ये strength कैसे पैदा कर रहे हैं? So बहुत कुछ दिमाग में आएगा. So it's like muscles, bones, nervous system, mind, this, that. ऐसा बहुत कुछ आएगा, है ना? No. You are not looking in the right direction. Pressure कैसे पैदा करो? That is what Kiran I am asking. How you are creating pressure? How you are creating pressure? यही मैं पूछ रहा हूं. प्रिया जी, ये तो बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है. But for most of the people, आपका एजुकेशन बीच में अड़े होगा आपकी समझ के. So let's do it again. दोबारा से करते हैं. Wherever I'm indicating, just look there. जहां बता रहा हूं वहां देखना है. So let's do it again. दोबारा से करते हैं. जहां बता रहा हूं वहां देखना है. ठीक है? Push it with all your strength. पूरा जोर लगाइए. Create lot of strength. Push it. The more you want to push, the more you have to hold your breath. जितना पुश करना चाहते हैं, जितना स्ट्रेंथ क्रिएट करना चाहते हैं, उतनी सांस रोकनी पड़ती. Yes or no? You hold your breath or no? सांस रोक के आप स्ट्रेंथ पैदा करते हैं. कभी खींचा किसी को? Have you pulled anybody? खींचा कभी किसी को? रस्सा कैसे खेलिए? किसी और इंसान को नहीं खींचा आपने. How do you pull? खींचते कैसे हैं? So clasp your fingers. ऐसे फंसा ले उंगलियों को. Clasp your fingers. Pull them in the opposite direction. खींचिए, जोर से खींचिए. See, the more you want to pull, the more you have to hold your breath. Yes or no? सांस रोकनी पड़ती है. जितना स्ट्रेंथ पैदा करना चाहे उतनी सांस रोकनी पड़ती है. राइट. इफ यू हैव टू गेट अप फ्रॉम द चेयर से उठना है तो क्या होगा? आवाज आएगी ना. व्हाट डिड यू डू? क्या किया? सांस रोक ली. सुबह उठते हैं, मॉर्निंग यू गेट अप, यू टेंस योर बॉडी एंड यॉन. आप अंगड़ाई लेते हैं. कैसे टाइट करते हैं बॉडी को? करके देखो. यू होल्ड योर ब्रेथ. बिना सांस रोके आप शरीर का कोई एक्शन नहीं कर सकते. वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, क्लाइंबिंग स्टेयरकेसेस, हाउसहोल्ड वर्क, वॉलंटरी फंक्शन. शरीर को जहां आप हिलाते हैं, देयर इज अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ ब्रेथ होल्ड which controls the movement. There is a variable amount of breath hold which goes behind. अलग अलग अनुपात में सांस रोक के आप शरीर को इस्तेमाल करते हैं. Without holding your breath in variable proportion, you cannot use your body. So, अब जो भी हाथ स्ट्रॉन्ग है अपना उठा लीजिए ऊपर, राइट और लेफ्ट, whichever hand. Tense it tight. जोर से टाइट कीजिए. जोर से टाइट कीजिए. सी यू होल्ड योर ब्रेथ एंड गिव इट अ डायरेक्शन. आप सांस रोक के उसे उस हाथ की तरफ में दिशा दे देते हैं. दूसरा हाथ तो ढीला है ना. एक हाथ की तरफ में आपने सांस को रोक के दिशा दे दिया. अच्छा, दोबारा एक और एग्जांपल टू गेट इट वेरी वेरी क्लियर. बिल्कुल साफ करने के लिए एग्जांपल और आप जानते हैं ना, पीपल गो टू जिम एंड बिल्ड मसल्स. लोग जिम जाते हैं, मसल्स बना लेते हैं. हाउ डू दे डू इट? कैसे करते हैं? बाय लिफ्टिंग वेट उठाते हैं ना. सो यू गो टू जिम. आप जिम जाओ और केवल एक हाथ से वेट उठाओ. लिफ्ट इट फ्रॉम वन हैंड. हाउ विल यू लिफ्ट वेट कैसे उठाएंगे? सांस रोक के. व्हाट इज द अदर थिंग दैट यू विल यूज? दूसरी चीज क्या इस्तेमाल करेंगे? The muscle of your right hand. Suppose you lift weight from the right hand. तो muscles इस्तेमाल करेंगे ना right hand के. So breath hold, muscles. Direction कहां गया breath hold का? Towards the muscles of your right hand. Weight तो बहाना है साहब.
for breath hold and direction, isn't it? So your right hand muscles will get built. Yes or no? तो क्या तरीका है? ब्रेथ होल्ड, डायरेक्शन. व्हेन यू वर्कड विद दैट हैंड मोर, आपने दाएं हाथ से जब ज्यादा काम किया या बाएं हाथ से ज्यादा काम किया, व्हेन यू वर्कड विथ वन हैंड मोर, व्हाट हैपेंड? हुआ क्या? ब्रेथ होल्ड, डायरेक्शन, ब्रेथ होल्ड, डायरेक्शन, एंड दैट हैंड बिकम स्ट्रांग. है कि नहीं? दैट हैंड बिकम स्ट्रांग. सो दिस इज द स्ट्रेंथ क्रिएटिंग मैकेनिज्म ऑफ दिस बॉडी. ये कोई भी अपने बाहरी शरीर में स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ क्रिएट करने का तरीका. ठीक है. अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वेबिनार, ध्यान से सुनिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वेबिनार, इफ यू होल्ड योर ब्रेथ, अगर आप सांस रोक लेते पर शरीर नहीं हिलाते, यू डोंट मूव योर बॉडी, व्हाट विल हैपन? क्या होगा? You will start sweating after some time. पसीना आ जाएगा, गर्मी लगेगी, हार्ट रेट बढ़ जाएंगे ना. योर हार्ट रेट विल इंक्रीज. आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी, पसीना आने लग जाएगा, मेटाबॉलिज्म विल इंक्रीज, यू विल स्टार्ट स्वेटिंग, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, इंटरनल फंक्शनिंग बढ़ जाएंगे. सो टेल मी वन थिंग, वेयर डिड द डायरेक्शन गो? डायरेक्शन कहां गया? Not outside, but inside. Inside चला गया ना. When you exercise, where does the direction go? Direction कहां जाता है? Outside. But when you don't use your body, move your body, don't move your, it goes inside. Can you direct your breath hold towards your thyroid and make it strong? You don't know how, but is there any other way? एक्सरसाइज करेंगे तो डायरेक्शन कहां जाएगा? थायराइड पे नहीं जाने वाला, आउटसाइड, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. समझ में आ रहा है कुछ? सो दिस इज द ओनली वे, देयर इज नो अदर वे. कोई फूड खा के किसी का थायराइड स्ट्रांग नहीं होता, समझ लीजिए. You will support, you will get a little support, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा. So this is Kumbhak therapy part 1. So you can direct the strength creating mechanism of your body towards the thyroid and make it strong. ठीक है ना? Let's go a little ahead. तो मैंने तो प्रॉमिस किया है ना, आपको मैं प्रूव करके जाऊंगा कि आप ज्यादा समझदार हैं, जितना सोचते हैं उससे ज्यादा समझदार. देखो समझदार होते जा रहे हैं ना धीरे धीरे, एक एक स्टेप करके. सो टेल मी, अब समझदारी से बताइए, हु डिजाइंड योर बॉडी? विच डॉक्टर, विच साइंटिस्ट डिजाइंड योर बॉडी? आपके बॉडी को किसने डिजाइन किया था? कपड़े खरीदने जाते हैं ना ब्रांड का, व्हाट ब्रांड आर यू? किसने डिजाइन किया था आपकी बॉडी को? टाइप डाउन इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में डालें, Who designed your body? आपके शरीर को किसने डिजाइन किया था? आप नीचे चैट बॉक्स में डालें. राइट डाउन इन द चैट बॉक्स वॉट एवर यू थिंक. जो भी आपको लगता है डालो ना, जो भी आपकी ट्रेनिंग हुई है डालो ना. मैं तो प्रूव करूंगा दैट यू आर मोर वाइज. आप ज्यादा समझदार हैं तो मैं प्रूव करूंगा. सो पेरेंट्स, मदर, तो पूछो मदर से आपने डिजाइन किया क्या? वो बोलेंगी नहीं 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 नहीं. पेरेंट्स बोलेंगे हमें नहीं मालूम कैसे हुआ. So many people are saying God, 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 Allah, Almighty. अच्छा मुझे आप लोगों में से बताइए, हाथ उठाना है, ठीक है? तो किसने गॉड को चाय पिलाया? अल्लाह को किसने चाय पिलाया घर पे बुला के? नहीं. फोन नंबर मालूम, एड्रेस मालूम? नहीं मालूम. किसी ने बताया आपको ना, और आपने मान लिया. अगर आप जानते तो उनको बोल देते थे, भाई ठीक करो यार, तुमने डिजाइन किया, जरा ठीक करो उसको, खराब हो गया.
नहीं होता ना, आप जानते नहीं है, दैट मीन्स यू डोंट नो, नहीं जानते ना, बट आप सभी जानते हैं किसने आपकी बॉडी को डिजाइन किया, सभी जानते हैं, हर एक इंसान यहां पे जानता है कि आपकी बॉडी को किसने डिजाइन किया। प्रूव करो, प्रूव करो। सो इफ यू सी एन अफ्रीकन पर्सन, एक अफ्रीकन को देखते ही आप क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू से, ओ अफ्रीकन। और चाइनीज को देख के क्या बोलते हैं, ओ चाइनीज। किसी को भी देखते हैं, इफ यू सी एनीबडी, यू गेट एन आइडिया वेयर डज द पर्सन बिलोंग टू। आप नॉर्थ ईस्ट से हैं क्या, अरे आप तो साउथ इंडियन लग रहे हो। हाँ, आप देखते ही जान जाते हो where does the person belong to, yes or no, the moment you see a person you get an idea, yes or no, जानते हैं ना। तो जब आपने बॉडी तो देखा, और क्या देखा बताओ, और कुछ देखा, जब आपने एक इंसान को देखा तो देखा क्या आपने, बॉडी तो देखा, सो आपने बॉडी का ही डिजाइन देखा है ना। सो व्हेन यू से अफ्रीकन, हु डिजाइन द बॉडी, अफ्रीका। व्हाट इज अफ्रीका, इट्स एन एनवायरमेंट, वो एक वातावरण है, अलग अलग वातावरण में अलग अलग तरीके की बॉडी पनपती है ना, हाँ या ना। यस, एवरी वन ऑफ यू नो हु डिजाइन द बॉडी। थोड़ा एजुकेशन ने आपको थोड़ा टेढ़ा कर दिया, बट यू आर मोर वाइज, आप ज्यादा समझदार हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जीन्स, यू डोंट नो जीन्स, बट यू नो हु डिजाइन द बॉडी। every person knows who designed the body. Environment, one particular kind of environment designs the body. Different environment design different physicality, isn't it? अलग अलग वातावरण अलग अलग लोगों को पैदा करता है। So if you are designed by environment, ये तो प्रूव है, इसमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं, ये सभी जानते हैं। आप लोग ज्यादा समझदार हैं, पता नहीं कहां देख रहे हैं, where you are looking at, don't know. So environment designed your body. What is the design of the body? समझना पड़ेगा ना। If you know the design of your body, you'll use it better. आप अच्छे से इस्तेमाल करेंगे ना इसका। So your body was designed for natural food. Whatever grows in a particular environment. जहां पे आप पैदा हुए ना, उस environment में जो भी फल फूल सब्जियां पैदा होती हैं, उसके लिए आपका शरीर डिजाइन है। Natural food. So what are you eating? क्या खा रहे हैं सुबह से शाम तक? Cooked, processed, genetically modified, packaged, altered food खा रहे हो ना, बदला हुआ भोजन खा रहे हो, you are eating altered food. Second thing, your body was designed for natural surrounding, प्राकृतिक वातावरण के लिए डिजाइन हुआ था। In the last 50 years, environment has changed by 80%. 80% जीव जंतु पेड़ पौधे खत्म, 80% बदल गया environment. 80% of plants and animal species have become extinct from the face of earth. Everything got polluted. हर चीज pollution हो गया ना, air pollution, water pollution, noise pollution, ground pollution, what not. सब pollution हो गया। Where is water? Fresh water कहाँ है? Ponds, lakes, rivers कहाँ है? Underneath our feet, पाँव के नीचे पानी कहाँ गया? 50 feet to 5,000, 10,000 feet down. कैसे एनवायरमेंट में रह रहे हैं? ऑल्टर्ड एनवायरमेंट, बदला हुआ वातावरण में रह रहे हैं। अब आप लोग समझदारी का इस्तेमाल करें, अपने विजडम का इस्तेमाल करें। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। इज दिस बॉडी डिजाइंड फॉर, वॉज दिस बॉडी डिजाइंड फॉर अननेचुरल केमिकल मेडिसिन? समझदारी का इस्तेमाल कीजिए। आपका शरीर क्या केमिकल मेडिसिन के लिए डिजाइन हुआ? नो। सो इफ यू हैव अ पेट्रोल व्हीकल एट होम, घर में एक पेट्रोल की गाड़ी है, विल यू पुट डीजल और कैरोसिन इनटू इट? डीजल कैरोसिन ऐसा कुछ डालेंगे? क्यों? व्हाई? कॉमन सेंस ना, कॉमन सेंस। दैट इंजन इज नॉट डिजाइंड फॉर डीजल और कैरोसिन, है ना, कॉमन सेंस। When you use this body, where does this common sense go?
मोर मेडिसिन लास्ट 50 सालों में, मोर मेडिसिन मोर डिजीज, मोर मेडिसिन मोर डिजीज। यस और नो? थायराइड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? थायराइड बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। डायबिटीज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? डायबिटीज बढ़ रहा है कम हो रहा है? हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, नंबर 1 cause of death. Cancer increasing. Take any other example. Mental issues increasing. Infertility, कोई एक नाम ले लो। मोर मेडिसिन मोर डिजीज। आंखें तो खोलना पड़ेगा, जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तब खोलेंगे क्या आंखें? आंखें तो खोलना पड़ेगा। You'll have to open your eyes. So let's go the last part. Let's go towards the last part of this webinar. आखिरी पार्ट, यू आर नॉट डूइंग योर थायराइड फंक्शन। आप अपना थायराइड फंक्शन नहीं करवा रहे। कैसे हो रहा है वो? हाउ इज इट हैपनिंग? सो वन एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है? समझने के लिए आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड बेटर। आपको मालूम है ना, पृथ्वी आपको अपनी तरफ खींचती है, ग्रेविटी पुल्स यू डाउन। आपको मालूम है ये बात, सभी बोलते हैं, पढ़ा लिखा है, आपने पढ़ा है। ग्रेविटी पुल्स यू डाउन, पृथ्वी आपको अपनी तरफ खींचती है, गुरुत्वाकर्षण अपने तरफ में खींचता है। एक बात बताइए, व्हाई डू यू ग्रो टॉल देन? आप ऐसे लंबे क्यों हो जाते हैं फिर? व्हाई डू ट्रीज ग्रो अप? पेड़ पौधे ऐसे लंबे क्यों हो जाते हैं? व्हाई डू बर्ड्स फ्लाई अगेंस्ट ग्रेविटी? दे मस्ट बी अप्लाइंग सम फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी। कुछ जोर लगा रहे होंगे ना, ग्रेविटी के उलट, पृथ्वी के अपोजिट जोर लगा रहे होंगे ना, फोर्स लगा रहे होंगे ना, फोर्स लगा रहे होंगे। सपोज ये फोर्स आप भी लगा रहे हो, आपका शरीर भी लगा रहा है, ये फोर्स कमजोर हो गया, ये इसको कहते हैं उदाना। इन कुंभक विज्ञान, इन कुंभक साइंसेस वी कॉल इट उदाना, इसको कहते हैं उदान। हैव यू हर्ड दिस वर्ड? उड़ान, उड़ना, ऐसा शब्द सुना आपने? उड़ना, उड़ान, सुना ना? इट हैज कम फ्रॉम द रूट उदाना, एंटी ग्रेविटी। उदाना मीन्स व्हाट? ऑपोजिट टू ग्रेविटी। ये जोर आप लगा रहे हैं, अपना आपका शरीर लगा रहा है। अगर ये वीक हो गया आपके अंदर, इफ दिस फोर्स हैज बिकम वीक इनसाइड यू, हाउ विल यू फील इन द बॉडी? शरीर में कैसा महसूस होगा? ये उठाने वाला फोर्स कम हो गया आपके अंदर, तो आप लाइट फील करोगे? नहीं फील करोगे ना। कैसा फील करोगे? हाउ विल यू फील? हेवी, हेवी इन द बॉडी, है ना? हेवी इन द माइंड। सो हेवीनेस इन द बॉडी, आपका शरीर हेवी फील करेगा। तो क्या चीजें असर करेंगी सबसे ज्यादा? नुकसान कहां होगा? वेयर विल इट इंपैक्ट वर्स्ट? ऑन द जॉइंट्स, जॉइंट्स में असर होगा। So how many people getting lower back pain, spinal issue, knee pain, shoulder pain, cervical, lock, elbows, tennis elbows कहते हैं। और ये चीज बढ़ रही है दुनिया में, कम हो रही है? बढ़ रही है ना। क्यों बढ़ रही है? If you feel heavy in the body, क्यों बढ़ रही है? Because उदाना force has become weak. दूसरी चीज, आपका माइंड हैवी फील होगा ना। व्हाट डू यू कॉल दिस? अगर माइंड में हैवीनेस होता है तो उसे कहते क्या है? STRESS, बहुत कॉमनली यूज करते हैं, स्ट्रेस। आप एक शब्द को बहुत कॉमन तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बट यू डोंट नो व्हाट इज स्ट्रेस। आपको लगता है सिचुएशन में स्ट्रेस होता है, सिचुएशन में नहीं होता स्ट्रेस। एक ही सिचुएशन में 10 लोगों को रख दो, 5 will get stress, 5 will not get stress. तो सिचुएशन में स्ट्रेस नहीं है, योर इनएबिलिटी टू हैंडल द सिचुएशन, वहां स्ट्रेस है। आप हैंडल नहीं कर पा रहे, आप कमजोर हो गए, ये स्ट्रेस है, इसीलिए स्ट्रेस फील कर रहे हो। क्या कमजोर हो गया? उदाना फोर्स, डिप्रेशन, लो मूड, लेथार्जी, प्रोकास्टिनेशन, ऐसे कितने सारे शब्द कहे जा सकते। क्यों हो गया वो आपके अंदर? लोअर बैक पेन, स्पाइनल इश्यू, है ना, स्लिप डिस्क, नी पेन, पेन इन लेग्स। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आप उठा नहीं पा रहे ठीक से अपने आप को।
स्ट्रक्चरल इशू, उदाना वीक हो गया। तो ऐसे 84 फोर्सेस होते हैं आपके अंदर, 84 अलग अलग फोर्स होते हैं विच मेक एवरीथिंग हैपन इनसाइड यू। आपका थायराइड ग्लैंड फंक्शन करवा रहे हैं, हार्ट फंक्शन, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, न्यूरो फंक्शन, कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म, बोलते जाइए कुछ भी। So 84 forces making thyroid function and other things function. कौन सा फोर्स आपके अंदर वीक हो गया जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर? We do this diagnosis, इसी यही डायग्नोस करते हैं। वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ अ डायग्नोसिस इन द वर्ल्ड, दुनिया में अपने तरीके का इकलौता डायग्नोसिस है। अब जिन्होंने लिखा था रूट कॉज, अब बताइए, आई एम टॉकिंग अबाउट रूट कॉज। ठीक है, तो कौन सा फोर्स वीक हो गया जिसकी वजह से थायराइड फंक्शन नहीं कर पा रहा ठीक से? वी फाइंड आउट दैट, हम पता लगाते हैं उसका। दिस इज नॉट अ मेडिकल डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है, a very unique kind of a diagnosis. We make you do experiment with your body, a little experiment with your body. So diagnosis करके पता लगा लिया कौन सा force weak हो गया. First we find out which force has become weak. We design a Kumbhak therapy to enhance the strength of that force. उस force को strong करना. ये हम डिजाइन इसलिए करते हैं ताकि उसकी वजह से, because of that force, whichever organ has got suffered, जो organ weak हो गया उसको strong करने के लिए। Related problems like after thyroid, if you have got into blood pressure fluctuation, sugar fluctuation, other issues like bloating, digestive issue, constipation, nervous system related issue, hormone related issue, infertility related issue, वो सारे ठीक हों because we are addressing the root cause. So we design the Kumbhak in such a way where the force becomes strong, the organ becomes strong, and the related problems solve. Kumbhak therapy, to be exact. ठीक है, और कोई तरीका है थायराइड को स्ट्रॉन्ग करने का? और कोई तरीका नहीं है, अब ढूंढ लो। ठीक है, और कोई तरीका? एवरीथिंग विल सपोर्ट, कुछ सपोर्ट करेगा, मेडिसिन तो सपोर्ट भी नहीं करेगा, नंबर दिखाएगा केवल, आपको धोखा देगा। तो दिस इज कुंभक थेरेपी। नाउ व्हाट इज कुंभक? एज आई सेड, ये आपके ही शरीर का स्ट्रेंथ क्रिएटिंग मैकेनिज्म, effort making mechanism of this body is called as kumbhak. So when you hold your breath you make effort, isn't it? But when you use your body you also make effort, तो भी आप कुंभक कर रहे हैं। when you are speaking, जब मैं बोल रहा हूं, when you speak, do you make effort? क्या आप जोर लगाते हैं बोलने के लिए? you make effort, you are doing kumbhak. when you are focusing on something, जब आप देख रहे हैं किसी को, क्या एफर्ट लगाते हैं देखने का? You do kumbhak. When you think, जब आप सोचते हैं तो एफर्ट लगाते हैं आप? You are doing kumbhak. Kumbhak can be done in many ways. बहुत तरीके से किया जा सकता है। So you can use sound to do kumbhak, you can use breath to do kumbhak, you can use thought to do kumbhak, you can use even the power of hearing or smelling to do kumbhak. तो बहुत तरीके से कुंभक कर सकते हैं आप। नाउ दिस इज नॉट अ प्राणायाम और योगा, ये प्राणायाम नहीं है, ये योगा नहीं है। योगा ऑल्सो यूज कुंभक एट अ सर्टेन स्टेज। योगा, अच्छा पहले तो बताओ योगा होता क्या है? योगा फैक्ट्री है ना, उसका एंड प्रोडक्ट क्या है? कोई भी योगा की किताब उठा लो, लास्ट में क्या मिलेगा आपको योगा करने से? समाधि, ऐसा ही है ना? योगा करने से लास्ट में मिलेगा क्या आपको? मुक्ति, समाधि, मोक्ष, एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, निर्वाण, कैवल्य। चाहिए क्या आपको वो? नहीं, हम आपको नहीं दे रहे, आप योगा करो कहीं जाके, इट्स ओके, वो हम नहीं दे रहे कुंभक में। वी आर मेकिंग यू मोर हेल्दी टू लिव लाइफ बेटर। हम केवल इतना चाह रहे हैं, आपको समाधि तक नहीं पहुंचाना, ठीक है ना? दिस इज अ थेरेपी, प्योर थेरेपी, एंड वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ कुंभक। हम अलग अलग तरीके के कुंभक इस्तेमाल करते हैं। सो वी विल डू वन कुंभक, एक कुंभक करेंगे, ठीक है?
इसमें दो तरीके के इस्तेमाल करेंगे, ब्रेथ कुंभक, साउंड कुंभक, राइट। विल यूज ब्रेथ कुंभक एंड साउंड कुंभक, दो कुंभक का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज नॉट अ थेरेपी, जो अभी आपको सिखा रहा हूं वो थेरेपी नहीं है। क्यों? वाई? फॉर थेरेपी वी नीड टू डायग्नोज यू, थेरेपी के लिए तो डायग्नोसिस करना पड़ेगा ना, आपका प्रॉब्लम कहां पे आ गई वो तो पता करना पड़ेगा ना। Then we will design kumbhak, we'll customize kumbhak for each and every individual. ये प्रोग्राम का पार्ट है, अभी तो नहीं कर सकते आपको डायग्नोसिस, तो इट्स अ जेनेरिक मेथड। इससे भी फायदा होगा आपको, जैसे आमतौर पे सिखा देते ना योगा प्राणायाम एंड दिस एंड दैट, उसी तरीके से आपको सिखा रहे, ठीक है। इट जस्ट अ लिटिल टेस्टर। ये वेबिनार का मकसद नहीं है कि आपको हम कुंभक सिखाएं, आपको केवल टेस्ट दे रहे हैं कि ये क्या है, कैसे कर सकते। सो फर्स्ट आई विल टेल यू द मेथड, पहले मेथड बताऊंगा, देन वी विल डू इट टुगेदर, साथ में करेंगे, मेरे इंस्ट्रक्शन के साथ में करना। थर्ड टाइम यू डू ऑन योर ओन एंड सी दैट यू आर एबल टू डू, तीसरी बार आप अपने आप करके देखिए कि आप कर पा रहे हैं। इवन देन यू डोंट गेट इट क्लियर, अगर फिर भी समझ में नहीं आता, you can watch the recording of this webinar again in the WhatsApp group. We'll share the recording. आपके ग्रुप में रिकॉर्डिंग शेयर किया जाएगा, उसको आप वापस देख सकते हैं, ठीक है। पर ये मकसद नहीं है कि हम आपको इसमें कुंभक सिखाएं, हम प्रोग्राम में बहुत मल्टी टीयर सपोर्ट डालते हैं ताकि आप इसे मिस नहीं कर सकें, हर एक को समझ में आ ही जाए, वो हमारी जिम्मेदारी होती है। सो देवपान कुंभक, एक कुंभक आपको करवा रहे हैं। विल यूज टू डिफरेंट एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म ऑफ दिस बॉडी, और कुंभक, दो अलग अलग कुंभक इस्तेमाल करेंगे करने के लिए इसको। देवपान कुंभक कैसे करना है? फर्स्ट, इफ यू आर इन अ लिटिल लाइट स्टमक कंडीशन, थोड़ा सा पेट खाली हो ना, तो उस समय हल्का हो, उस समय कर, जैसे भोजन करने के बाद में, आफ्टर फूड, आफ्टर मील 3 आवर्स, 3 घंटा रुकिए, 3 घंटे बाद कर सकते। यू कैन डू इट एनीवेयर, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, चेयर पे बैठ जाओ, बेड पे बैठ जाओ, जमीन पे, कहीं पे बैठ। द ओनली प्रिकॉशन दैट यू हैव टू टेक, एक ही चीज आपको करना है, अपने रीढ़ की हड्डी को फ्री छोड़ना है। कीप योर स्पाइन फ्री, बैक रेस्ट नहीं लगाना, टेक नहीं लगाना, पीछे साइड रेस्ट नहीं लेना। सो कीप योर स्पाइन फ्री, ताकि वी आर क्रिएटिंग एन इंटरनल ट्रिगर, अंदर एक ना जोर लगा रहे हैं, ट्रिगर क्रिएट कर रहे हैं, वो सही जगह पे जाना चाहिए, है ना। आप जहां रेस्ट करेंगे ना वहां इकट्ठा हो जाएगा, वो नहीं चाहिए अपने को। सो द ट्रिगर शुड रीच टू द राइट प्लेस। देवपान कुंभक, आई एम टेलिंग यू द मेथड बता रहा हूं। सेकेंड टाइम डू इट विथ मी, अभी पहले सुनना है केवल। सो व्हाट यू डू, द वे यू यॉन, उबासी लेते हैं ना तो हवा खींचते हैं मुंह से। व्हेन यू यॉन, उबासी लेते हैं तो मुंह से हवा खींचते हैं ना, ऐसा 3 बार लगातार खींचना, विदाउट एक्सहेलेशन, सांस नहीं छोड़ना। इनहेल फ्रॉम माउथ, सेकेंड टाइम इनहेल, होल्ड अ लिटिल, एंड थर्ड टाइम इनहेल, होल्ड। 3 बार हवा खींच के रोक लेना। इनहेल, होल्ड, सेकेंड टाइम इनहेल, होल्ड, थर्ड टाइम इनहेल, होल्ड। रोक लिया, तीसरी बार 3 बार खींच के रोक लिया, क्लोज योर माउथ, मुंह बंद कर लो। बेंड योर हेड अ लिटिल डाउन, थोड़ा सिर नीचे करो। वो तो हवा भर लिया ना अंदर आपने, यू हैव टू पुश दैट एयर डाउन, उस हवा को नीचे की तरफ, धरती की तरफ में पुश करना, धकेलना है। कैसे कैसे पुश करेंगे? सो पॉटी कैसे करते हैं आप, जब निकलती नहीं तो थोड़ा जोर लगाते हैं ना, तो थोड़ा जोर लगाना, ठीक है, लेकिन पहलवानी मत करना, ठीक है ना, पहलवानी मत करना उसके साथ में। जस्ट पुश द एयर डाउन एंड होल्ड, रुक जाइए। फिर क्या कर सकते हैं पुश करने के लिए? टेंस योर एब्डोमेन, पेट को थोड़ा टाइट कर लो, कमर टाइट कर लो, टेंस योर लेग्स, मेक फेस्ट एंड सपोर्ट इन पुशिंग, है ना। थोड़ा नीचे के हिस्से को, शरीर के नीचे के हिस्से को टाइट करके वो पुशिंग को सपोर्ट करो, थोड़ा धक्का दो, धक्का देके रुक जाना, होल्ड फॉर 8 काउंट्स, 8 गिनती तक रुक जाए, 8 गिनती तक रुक जाए। देन फिर क्या करना? लिफ्ट योर हेड अप, सिर ऊपर उठा लो, थोड़ा नीचे किया ना, थोड़ा ऊपर उठा लो। एक्सहेल फ्रॉम द नॉस्ट्रिल, दोनों नाक से सांस छोड़ना है, मगर कैसे छोड़ना है? वो जो जोर लगाने में आवाज निकलती है ना, वही आवाज निकालते हुए छोड़ना। 12 गिनती में छोड़ेंगे, 12 काउंट्स एक्सहेलेशन। हाउ? मेकिंग अ साउंड, जोर लगाने में जो आवाज निकलती है ना, उससे कंट्रोल करना है एक्सहेलेशन को।
12 गिनती में एक्सेल करेंगे, लंबा एक्सेल करेंगे। शुरू करते हैं, लेट्स डू इट। मुट्ठी बांध लो, पांव पे रखो जरा, कीप इट ऑन योर नीज, पांव पे रखो, है ना। चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं, केवल पीछे सपोर्ट नहीं लेना। नाउ ओपन योर माउथ, मुंह खोलना। इनहेल फुल, पूरी सांस खींच लो, होल्ड, सेकेंड टाइम पुल मोर, और खींचें, थर्ड टाइम मैक्सिमम खींच लो, क्लोज योर माउथ, मुंह बंद करो, सिर झुकाओ, नीचे की ओर प्रेशर डालो, हवा को नीचे धकेलो धकेलो। 8 7 6 5 4 3 2 1, लिफ्ट योर हेड अप, सिर ऊपर उठाना है, आवाज करते हुए एक्सेल करना है, धीरे धीरे नाक से करना है। 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। थोड़ा खांसी आ रहा है, कोई बात नहीं किरण, आराम से करना, है ना। थोड़ा ज्यादा जोर लगाओगे तो खांसी आएगी। तो मैंने कहा तो पहलवानी नहीं करना इसके साथ में। दीज आर वेरी पावरफुल प्रोसेसेस, है ना। व्हेन यू डू, हाँ कोई बात नहीं, व्हेन यू डू फॉर फ्यू टाइम्स, जब आप कर लेंगे ना, आराम से कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट मैक्सिमम कितना करना है? 16 राउंड से ज्यादा नहीं करना कभी भी, और 8 राउंड से कम करोगे तो फायदा नहीं है। सो मोर देन 8 राउंड्स, लेस देन 16 राउंड्स। ऑलवेज गिव अ लिटिल गैप बिटवीन 2 राउंड। 2 राउंड कर रहे हैं ना, तो बीच में गैप देना है। अपनी सांस को संभालिए, कैच योर ब्रेथ, सामान्य करो। ओनली इफ योर ब्रेथ इज नॉर्मल देन अटेम्प्ट द नेक्स्ट राउंड। पहले ब्रेथ, सांसों को सामान्य करो, फिर आगे का राउंड अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। तो 8 राउंड मिनिमम, बट मैक्सिमम नॉट मोर देन 16 राउंड। क्या ये नुकसान करेगा आपको? नहीं नहीं, नुकसान करेगा, बदलाव तेज कर देगा, वो आपको हजम नहीं होगा, झेला नहीं जाएगा, ठीक है ना। अपना कंफर्ट जोन होता है ना, कंफर्ट जोन हटते ही लोगों को तकलीफ हो जाती है। सो डू इट जेंटली, माइल्डली, जितना स्थिर होके कर सके करें, है ना। ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करना, हालांकि इसमें प्रेशर लगाना है, मगर बहुत ज्यादा पहलवानी नहीं करना, अपनी बॉडी के साथ में रेसलिंग नहीं करना। तो एक राउंड अपने आप करके देख सकते हैं कि आप इसे कर पा रहे हैं। तो आई जस्ट गिव द इंस्ट्रक्शन वेरी क्विकली, जल्दी से बोलूंगा। सो 3 बारी मुंह से सांस भरना है, मुंह बंद करके, सिर नीचे करके, प्रेशर, पुश द एयर डाउन, प्रेशर क्रिएट करो अपने बॉडी में नीचे की तरफ में, होल्ड इट फॉर 8 काउंट, 8 गिनती करो माइंड में। देन यू कैन लिफ्ट योर हेड अप, सिर उठा के, आवाज करते हुए नाक से एक्सेलेशन करना है, कंट्रोल करो एक्सेलेशन, 12 काउंट एक्सेलेशन, 12 गिनती में एक्सेल करना है, एंड देन रिलैक्स। सो व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स इट कैन सॉल्व, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? सो इफ यू हैव लोअर बैक पेन, कमर में दर्द है अगर, इफ यू हैव नी पेन, पांव में दर्द रहता है, मसल्स फटीग, है ना, ड्रॉप फुट, नर्वस सिस्टम इश्यू इन द लेग्स, है ना, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल पेन, फ्रोजन शोल्डर, कॉन्स्टिपेशन, रात को नींद नहीं आती, एंजाइटी इश्यूज, पैल्पिटेशन, ब्लड प्रेशर इश्यूज, ऐसे बहुत सारी चीजों को ये सॉल्व करेगा। बट दिस इज नॉट अ थेरेपी, क्योंकि आप में क्या कमी आ गई, आप में क्या, कौन सा फोर्स वीक हो गया, वो हमें डायग्नोस करके पता करना पड़ेगा। दिस इज अ जेनरिक थिंग दैट आई हैव गिवन। सो आई विल स्टॉप हियर, यहां पे मैं रुकूंगा, द टीम विल टेक यू फॉरवर्ड। थैंक यू सर। तो आप लोग शायद आप जानना चाहेंगे कि किस तरीके से पूरा प्रोग्राम कवर किया जाता है, क्या क्या रहता है और कैसे बेनिफिट मिलता है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू डोंट हैव टू गो फिजिकली एनीवेयर। ये ऑनलाइन है कंप्लीटली, द एंटायर प्रोग्राम इज ऑनलाइन एंड यू कैन सिट थ्रू अ मोबाइल फोन एंड ज्वाइन रिमोटली, जहाँ पर भी हो आप दुनिया में, नन ऑफ दैट मैटर्स। आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, and the goal is to reverse all your conditions completely. So it's not management, it is about cure. Now what do we mean by reversal or cure and things like that? Simple सी बात है, रिवर्सल या क्योर का मतलब मैनेजमेंट या किसी मेडिकल पैरामीटर या डायग्नोसिस की बेसिस पे आपका TSH या T3 T4, नॉट जस्ट दैट, ऑब्वियसली ऑल्सो दैट,
बट आपके सिम्टम्स जाने चाहिए, आपकी दवाइयों की डिपेंडेंसी और कुंभक थेरेपी पे भी प्रोलॉन्ग डिपेंडेंसी टू मेंटेन दैट सिचुएशन वो नहीं रहना चाहिए. Until unless that happens, तब तक क्योर कंप्लीट नहीं है. This entire process does not involve any exercise, any diet, any medicine, even Ayurveda. But हाँ, lifestyle guidance तो थोड़ा support आपको दिया जाता है आपकी recovery के लिए. छोटा सा पोल मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रहा हूँ, so that you can help us understand के if you find this to be suited to your condition and so on. So make sure कि आप वो पोल पे जरूर respond करें. वी विल ओपन अप फॉर क्वेश्चंस. तो इसमें बहुत सारे आपके जो पैरामीटर्स हैं T3, T4, TSH और बहुत सारे इश्यूज, वेट इश्यूज एंड सो ऑन. उसके अलावा आपका एनर्जी का लेवल, स्लीप क्वालिटी, डाइजेशन एटसेट्रा, ये सारी चीज़ों में आपको बेनिफिट मिलेगा. सो द एंटायर प्रोग्राम इज फॉर नॉट जस्ट 3 months इज अ स्ट्रक्चर्ड पार्ट ऑफ इट, बट द सपोर्ट कंटिन्यूज इवन बियॉन्ड 3 months, 3 महीने के बाद भी रहता है. इट्स बेस्ड ऑन प्राण शक्ति डायग्नोसिस. उसकी बेसिस पे हम आपको डायग्नोज करके पता करेंगे कि आपके शरीर में फंक्शनल वीकनेस क्या और किस हद तक है. उसकी बेसिस पे आपके कस्टमाइज मॉड्यूल से सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, गाइड किया जाएगा. सो देयर आर 4 phases in the program. So first is learning, then practicing, getting into the discipline of doing it correctly every single time, then recovery, getting out of medicine, and then extended support till the point you completely come out of your condition. So there are bunch of classes. There are 3 main important sessions. So पहला जो आपका phase है learning का phase, वो ये learning के phase को describe किया गया है. It is for 3 weeks. तो week 1 में there is a learning session etc. 7 बजे से शुरू होता है actually. 7 से 8:30, 90 मिनट के 3 सेशंस होंगे आपको वीकली, एक सेम टाइम पे, सेम डे सेम टाइम एंड सो ऑन. फिर प्रैक्टिस सेशंस होते हैं सुबह शाम के, तो वो एडिशनल हैं लर्निंग फेज में, सो दैट यू फर्स्ट ऑफ ऑल do an initial kumbhak therapy exercise, then you go for a base, after basic you go for an advanced kumbhak module, and then आपकी diagnosis की basis पे आपके individual क्रियाएं, individual practices आपको बताई जाती हैं in the 3rd week. Then there is a practicing का week. So a practicing का phase for about 40 days. तो 40 days पहले मंथ के कुछ एक वीक आखिरी और अगले 4 वीक्स. तो ये 4-5 वीक 6 वीक्स में आपको ये चौथे वीक से लेके 8वें वीक के बीच में देयर आर बंच ऑफ सेशंस, 40-day मंडला पीरियड with individual guidance as well, mental support के basis पे, so that you start doing it correctly and in a disciplined manner. और तीसरा फेज जो होगा वो आपका प्रैक्टिसिंग और लेवल ट्रैकिंग, सो दैट वी कैन गाइड यू हाउ टू कम आउट ऑफ योर मेडिसिन स्टेप बाय स्टेप, अंडरस्टैंड योर सिम्टम्स, कम आउट ऑफ मेडिसिन एंड एवरीथिंग, वो सारी चीजों के लिए. सो दिस एंटायर थिंग इज फॉर 3 months. उन 3 महीनों के बाद भी मंथली सेशंस होते हैं जब तक कि आपकी रिकवरी पूरी तरह से कंप्लीट ना हो, वॉट एवर टाइम इट टेक्स. प्राण शक्ति डायग्नोसिस की हमने बात करी, इट्स अ सिंपल ऑनलाइन फॉर्म, मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है. तो ऑनलाइन फॉर्म से हम आपकी प्रकृति जानते हैं, आपका नेचर जानते हैं, और आपकी फंक्शनल वीकनेसेस के बारे में पता करके वी कैन गाइड यू अकॉर्डिंगली. So that's how it is. Then throughout the program, you have a mentor support, WhatsApp group support, phone call support, and if it is required, individual level पे video session में भी आप जा सकते हैं with your mentors. So that's how it is. इसके बाद में within a session, स्वामी जी आप लोगों को गाइड कर रहे होंगे लर्निंग क्लासेस के दौरान, and there are separate set of Kumbhak therapists whose job is to observe and correct you via chat while you're doing it. You can be sitting anywhere. Back rest नहीं होना चाहिए. आप बेड पे बैठे हुए या कुर्सी पे बैठे हुए, you can do it very conveniently. सेशन आप सही तरह से समझ पाएं, सीख पाएं, खुद से दोहरा पाएं, उसके लिए you do get a session recording and an instruction set both in Hindi and English. PDF मिलती है आपको, जिसको रेफर करके you need to do it on your own. So as a 30-minute module, सुबह 20 मिनट निकालना है, शाम को 10 मिनट निकालना है, only 30 minutes for the entire day. That's all it takes. No diet, no exercise, no handle-like movement, nothing. Anybody can do it any age. तो उस तरह से रहता है. So the efficacy of the program, results क्या रहे हैं? 78% of the people who have joined in, they have been able to recover. जो 22% बचे हैं वो अधिकतर वो बंदे हैं जो डिसिप्लिन में नहीं रह पाते हैं. So 25% medicinal dependency all completely gone. Additional 29 more than half reduced. Then additional 24% इनके symptoms बहुत बेहतर हुए हैं, but doctor medicine
कंट्रोल कर रहे हैं. So that's how it is. The cost of the program is 7,500 rupees till 8 p.m. tomorrow. Otherwise, the full program cost for webinar attendees is 8,000 rupees. All kinds of methodologies are there to make the payment. Jiska interest ban raha ho, please share your numbers on the WhatsApp group, in this group chat. And in case you have interest or in case you have any queries, अभी तो हम सारी आंसर करेंगे, फिर भी अगर जरूरत हो तो we can reach out to you. So the program is beginning on a Thursday 7 a.m. तो learning sessions जो होंगे वो 7 बजे सुबह होंगे, 90 मिनट के sessions होंगे 7 a.m. till 8:30 a.m. starting from 19th of August. You can go to the website and check it out and all of that. वो सारी चीजें कर सकते हैं. So now we will open up for questions. तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और अपने सवाल डायरेक्टली पूछ सकते हैं स्वामी जी से. तारिक जी, आपका सवाल है कोई? I want to ask one question, sir. Sir, this is quite a new thing to be learned, and because it does not have any sort of medicine, any sort of special diet, and how can we believe that this is the therapy which can make us healthier? Anybody's cell number which you may share with us, 2-3 persons, so that we may talk to him that how did they get rid of their diseases, sir? मैं आपके सामने आपके सवाल का जवाब दे दूंगा. Let me answer your question. So some of the examples. This has changed my life. Anxiety बहुत होती है, but I didn't know कि मैं इतनी जल्दी मेरे अपने सारी प्रॉब्लम जल्दी नहीं करूँगा. ठीक है. मतलब amazing thing about this work is that कि मैं अब मैंने इस तरह के बहुत सारे examples हैं sir. So I'll just walk through because many people would be having questions. Many of these people have joined. Many of these people have joined us as volunteers as well. तो करीबन 1500-1600 लोगों ने ये प्रोग्राम करे हुए हैं और बहुत सारे करीब 40-45 के आसपास वॉलंटियर्स हैं जो कि once they have gotten treated, they have joined the entire thing basically as volunteers. So some of them would be part of the program and they would be guiding you. Yes, we can share the numbers, as many numbers as you want. That is not a problem. Do share your WhatsApp number, your phone number, etc., so that we can reach out to you. Well, that's not a problem. So there are many people like this, all of these examples are there. So I won't bore you guys. We'll share this recording in the group. So एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि when you are taking medicine, जब आप मेडिसिन लेते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, you don't ask for any proof. Give me one example through medicine who has become fine and they never had to take medicine. एक एग्जांपल, एक प्रूफ दे दीजिए. दुनिया में एक प्रूफ दे दीजिए. Forget about it. Give me one proof in the entire world. थायराइड मेडिसिन लेके जो ठीक हो गए, but you are still taking thyroid medicine without asking, without having even a single result. आप ले रहे हो ना? Think about it. आप जब सोचते हैं तो किस तरीके से सोचते हैं, ये भी जरा देखने की जरूरत है. Excuse me, sir, I do have a question. Go ahead, Fatima. Actually, I am a working woman, so quite regularly morning hours I'll be occupied with my job. I will not get time in the morning sessions to attend any of your sessions. Then how do I have to do this? I am left with no. Ma'am, 3 or 4 things to ensure that you do it, still are able to, enjoy the benefits. Today you get the recording of all the sessions, so you can, learn, self-learn also on your own. So that is always there. B, you have a mentor support, so you can get in touch with your mentors at any point of time in your own convenience and take guidance wherever you are getting stuck. Self-learning and things like that. And C, we have practice sessions which happen both in the morning and also in the evening. So you can join that also in different days. So whenever it is possible for you, you can enjoy the benefits accordingly. Good evening, sir. This is Shailendra. Yes, sir. Go ahead. Sir, actually, I am suffering from diabetes from last 4 years, and from last 2 years, I am suffering from BP, and now thyroid has here.
तो मुझे चाहिए कि कैसे मैं उसको क्योर करूं। आप पहले अपने शुगर के प्रोग्राम में, वो डायबिटीज के प्रोग्राम में आ जाओ, बिकॉज यू स्टार्टेड विथ डायबिटीज, इजंट इट? आपका डायबिटीज पहले शुरू हुआ ना, तो आपको डायबिटीज के प्रोग्राम में आना चाहिए। फिर बाकी चीजें जो थायराइड और ब्लड प्रेशर भी उसी प्रोग्राम में हैंडल होगा। जो पहले आया ना, वॉट एवर हैपेंड फर्स्ट, दैट इज द प्रोग्राम दैट वी शुड जॉइन। Right. थैंक यू। So cost of the program is 7,500. Many people asked, how will you diagnose us? हाँ, सो पढ़ाई करवाएं क्या? इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बट आई विल टेल यू अ जिस्ट ऑफ व्हाट, है ना। आप कहना चाहते हैं कि ऑपरेशन करता है डॉक्टर, तो आप डॉक्टर को पूछते हैं कि पहले आप मुझे सिखाइए कि ऑपरेशन कैसे करते हैं, तभी हम ऑपरेशन करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। No, you don't do that. So what I'm saying is, you do a little experimentation with yourself. जो मॉडर्न डायग्नोसिस है ना, इट डजंट टेल यू व्हाई यू T3 इज लो और TSH इज हाई। क्या आपका टेस्ट वो बताता है क्यों हाई है? आपका बताता है आपका टेस्ट? नहीं बताता। तो मॉडर्न डायग्नोसिस डजंट से एनीथिंग अबाउट व्हाई, इट ओनली सेज अबाउट व्हाट। कोई भी मॉडर्न डायग्नोसिस जो है वो व्हाई नहीं बताता, व्हाई का जवाब नहीं देता आपको। डॉक्टर्स को मालूम नहीं कि थायराइड क्यों होता है, उनको एक्चुअली मालूम नहीं, मेडिकल साइंस को मालूम ही नहीं कि थायराइड क्यों होता है। So they don't know why of it. We are trying to find out the why of it. So that is what I explained in this webinar. अगर आपने नहीं देखा ना, तो आप देखिए। So why your thyroid function is not happening properly? So there must be a force. है ना? वो कैसे पता लगेगा? If you do a little experimentation with your breath, if you do a little experimentation with your mind, if you do a little experimentation with your emotions, so we ask such questions. जहां पे आप अपने साथ में थोड़ा ऑब्जर्व करके हमें वो आंसर्स देते हैं। थ्रू दैट वी आर एबल टू फाइंड आउट व्हाट हैज गॉन रॉन्ग, व्हिच फोर्स हैज बिकम वीक। तो ये एनालिसिस हम जो है, आप जैसे आंसर करेंगे उसके हिसाब से हम करें। देयर इज अ वे टू डू दैट, बट इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इन द लास्ट 2.5 years मैं उसे किसी को सिखा नहीं पाया हूं, इट इज सो कॉम्प्लेक्स। But we will develop an algorithm later on, and we'll put on artificial intelligence into it, and we'll ensure that it is made like automated. मगर अभी नहीं हो सकता। I sit on the diagnosis and it's a little complex, but we want to find out which force has become weak. That is what we do. Right. You can unmute yourself and ask your question, please. जिसको सवाल पूछना है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। पाकिस्तान से पैसे कैसे भेजे जा सकते हैं सर? पाकिस्तान से पॉसिबल नहीं है सर, मैंने अभी आपको जवाब भी दिया था। तो मुझे सुना नहीं गया। आई डिड नॉट। पाकिस्तान में I didn't say anything. I responded via chat. So पाकिस्तान से इंडिया में पैसे भेजना is not possible. The only thing you can do is you can route any of your relatives you might be having in the Middle East or Southeast Asia or something. Directly Pakistan से इंडिया में भेजना possible. ओके। So there are a lot of people, by the way, from Pakistan. Some 10-15 people who want to join in, but अभी वो हो नहीं पा रहा। All right. So Miss Priya, Mr. Wasim Khan, आप लोगों का सवाल है क्या? Miss कुसुम जी, अगर आप हैं तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जी सर, मुझे ये पूछना था कि दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट थिंग, मतलब जैसे कि हर चीज का एक बेस होता है, तो ये कैसे किस चीज पे बेस करके बता रहे हैं? का पूरा वेबिनार ही बेस को एक्सप्लेन करने के लिए है। दिस इज बेस्ड ऑन द एफर्ट। आपने जो बताया था कि मतलब अपने सांस को के कंट्रोल से आप जो बता रहे थे, लेकिन मतलब ये मुझे उतना क्लिक नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है। आप ये कैसे हो सकता है, आप एक काम कीजिए, दोबारा से देखिए। आपको क्लिक नहीं हुआ कैसे हो सकता है वो ओके, मगर आप दोबारा से देखिए, क्योंकि बार बार एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना सेम चीज को। हम जो बात कर रहे हैं वो
अपने ही शरीर का एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म, स्ट्रेंथ क्रिएटिंग मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। इंसान के शरीर की स्ट्रेंथ क्रिएटिंग मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। उसी से आप किसी चीज को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसी से आप एक ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसका तरीका होता है, वही तरीका है कुंभक थेरेपी। Just to add to what स्वामी जी said, बड़ी सिंपल सी चीज है मैम। लोग ऑब्वियसली काफी बार ये सवाल करते हैं, भाई अगर हमारे शरीर के अंदर कोई फंक्शनल वीकनेस है, बॉडी सपोज टू वर्क इन अ सर्टेन वे, अगर वो उस तरह से काम नहीं कर पा रही है, तो देयर इज सम काइंड ऑफ अ फंक्शन, सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी और एन ऑर्गन और अ प्रोसेस इज नॉट फंक्शनिंग properly. Now, if you want to strengthen that process, there is only one voluntary action we have inside our body, जो हमारे हाथ में, हमारे control में, which is our breath. Now, all we are trying to do is use our breath as a life force and work on that weakened part of our body again and again in a systematic manner, so that we can improve blood circulation in those areas and start reviving and rejuvenation of those areas. Simple as that. So that's the only thing, and that's the only sort of. Is this an ancient? Is this any ancient kind of mechanism? Is the most. क्योंकि कभी सुना नहीं है इसके बारे में। जी मैम, the most ancient kind of mechanism जिसमें सारी human intelligence based है, which is darshan, observation. So it's a combination of a lot of things which we know of, and a lot of things which Swamiji has observed and has been guided upon. So that's how it is. Swamiji, you would want to add certain things? एक और चीज बताऊं, अगर मैं टेक्निकल हो जाऊंगा तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। मैंने इजी वे में समझाया तो भी नहीं समझ में आया, टेक्निकल हो जाऊंगा तो और नहीं समझ में आएगा। फिर तो कुछ नहीं समझ में आएगा। नहीं, देखो आप हाथ भी हिलाते हो तो कुंभक कर रहे हो ना। आप शरीर को बिना कुंभक के, बिना एफर्ट लगाए तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो वही, ये कोई अलग चीज है क्या? कोई और पढ़ाना चाहिए आपको कि आप हाथ कैसे हिलाओ? नहीं ना, यू नो दिस, आपका शरीर जानता है ना। इसी को केवल शब्दों में बोल रहे हैं कि एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म को कुंभक कहते हैं ना। और टेक्निकल हो जाता हूं, कुंभक से आप एफर्ट लगाते हैं ना, तो अंदर भी एफर्ट लगा सकते हैं। यही एक तरीका है अंदर का एफर्ट लगा, अंदर, अदरवाइज आपका कोई कंट्रोल नहीं। तो अंदर आप एफर्ट कैसे लगा सकते हैं? जो आपका एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म है उसी को अंदर घुमा दो, उसको अंदर की ओर कर दो, तब वो लगेगा। अब दूसरी बात बताता हूं, अगर अंदर की ओर एफर्ट लगाते हैं आप, सपोज करो एक तरीके से लगाते हैं एफर्ट, मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप एक शब्द बोल रहे हैं, अलग अलग शब्द को बोलने के लिए अलग अलग एफर्ट लगता, ठीक है? और अलग अलग तरीके से सांस लेने के लिए भी होल्ड करें। सपोज करो यू इनहेल फॉर 4 काउंट एंड होल्ड, you inhale for 2 count and hold, you inhale for 1 count and hold, अलग अलग एफर्ट लग रहा है। ये अलग अलग एफर्ट अगर बिना शरीर को हिलाए करेंगे तो अलग अलग जगह पे चला जाएगा, बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में चला जाएगा। तो इस तरीके से यू कैन क्रिएट एन इंटरनल ट्रिगर, आप अंदर की एक ट्रिगर क्रिएट कर दिया तो होगा क्या? सपोज करो हर ऑर्गन, सपोज नहीं करना, मेडिकल साइंस कहता है हर ऑर्गन में स्टेम सेल्स होता है, स्टेम सेल्स होते हैं हर एक ऑर्गन। आपके थायराइड में भी स्टेम सेल्स है, तो उसको रिवाइव कर देना चाहिए ना आपके थायराइड को, पर कर क्यों नहीं रहा? उसको ट्रिगर नहीं मिल रहा। और अंदर ट्रिगर देंगे कैसे आप? अंदर कोई एफर्ट लगाएंगे ना, तभी ट्रिगर मिलेगा उसको। आप और किस तरीके से करेंगे एफर्ट? अंदर कैसे लगाएंगे? जब शरीर नहीं हिलाएंगे तभी तो अंदर लगेगा, शरीर हिला के अंदर थोड़ी लगता। तो जब अंदर आप एक एफर्ट ट्रिगर क्रिएट करेंगे तो वहां पे असर आएगा ना, उसको फोर्स लगेगा। वहां पे एक तरीके से आपने जोर लगा दिया ना, जैसे इस हाथ को टाइट किया, यहां के मसल्स पे आपने एफर्ट लगाया ना, इस हाथ को टाइट किया तो यहां के मसल्स पे एफर्ट लगाया। वैसे ही थायराइड पे भी एफर्ट लगा सकते हैं, मगर आप ऐसे शरीर को टाइट करके नहीं लगा सकते। तो आप ब्रेथ होल्ड का ट्रिगर क्रिएट करते हैं, एक डायरेक्शनल ट्रिगर, तो वो उस डायरेक्शन में जाता है, वो आपके स्टेम सेल्स को रिजुवेनेट कर सकता है, आपके जेनेटिक्स को बदल सकता है। हम जेनेटिक्स को ट्रांसफॉर्म, सोल्यूशन है। हाँ जी, कैंसर का प्रोग्राम करते हैं। अच्छा अभी कुछ आइडिया लगा,
हाँ कुछ समझ में मतलब आ रहा है समझ में, लेकिन वो जो दिमाग है ना वो बोलता है नहीं अपन एलोपैथी की तरफ ही जाओ, तो वो जल्दी से दूसरी चीज लेता नहीं है एक्चुअली। हाँ, तो वैसे ट्रेनिंग की गई है ना, वही आपको वो अगर बचपन ट्रेनिंग से किया वही जाए, सीखा है ना। नहीं ट्रेनिंग आपको जैसा करा जाए आप वैसे ही सोचते हो। एग्जैक्टली तो इसीलिए जल्दी से दूसरी चीज अपनाना नहीं चाहते हम लोग। हाँ, इसीलिए तो ठीक नहीं हो रहे ना, इसलिए तो सब बीमार हो रहे सर एक क्वेश्चन है मेरा, हैं। सर मेरा एक प्रश्न है कि जी। अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग थेरेपी होती है कुंभक की? जो चीज हाँ अलग अलग के लिए होती है, मगर अगर सपोज कीजिए आपको थायराइड है और उसके जी। बाद में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दूसरी प्रॉब्लम आ गई, तो आपको केवल यही ज्वाइन करना है, इसी से अच्छा। बाकी चीजें ठीक हो गई। ओके, अलग अलग थेरेपी के लिए अलग अलग ज्वाइन नहीं करना है? नहीं 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 नहीं, अच्छा अच्छा, तो सर एक ही प्रकार के कुंभक से बाकी बीमारियां कैसे ठीक हो जाएंगी? नहीं 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 नहीं, वो आपको डायग्नोसिस करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कौन कौन से फोर्सेस वीक हो, तो उसके हिसाब से आपको फाइन ट्यून किया जाता है, आपको जो कस्टमाइज हमको मेथड फीस दिए पे जाते हैं। जी, हमको जो फीस पे करनी है वो एक ही बार के कुंभक के हाँ लिए हाँ, एक, ये तो वो फिर अगर एक मान लीजिए 2-3 प्रॉब्लम्स हैं तो वो कैसे नहीं नहीं, शेयर वो करेंगे? उसी में हम हैंडल करेंगे ना, वो आपको अलग अलग फीस नहीं पे करनी। अच्छा जी। ये एक तरीके की मेंबरशिप है, आप एक बार आ जाते हैं, आपका डायग्नोसिस होता है, आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए कस्टमाइज किया जाता है। और सर मान लीजिए 3-4 साल पुरानी कोई बीमारी है और उसको ठीक करने के लिए कितना हमको टाइम उसमें लगता है कुंभक में? हाँ, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग समय लगता है, कुछ लोगों को एक ही हफ्ते में फायदा महसूस होना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को 1 महीना लगेगा, कुछ लोगों को 3 महीने लग सकते हैं, कुछ लोगों को 1 साल भी लग सकता है। अच्छा। सारी प्रॉब्लम से निकलने के लिए। मगर मुझे एक बात बताइए ना, और तो कोई तरीका है नहीं कि आप इन प्रॉब्लम से निकलेंगे, और तो साथ एक में हम साल दवाई भी खाते हैं क्या सर? हाँ शुरुआत में खाते हैं, बाद में छोड़ सकते हैं, वो हम बताते हैं आपको, वो सब होता है, ट्रैकिंग वगैरह का सिस्टम सब बताते हैं। जी मगर जी मुझे एक बात बताइए ना, आपकी 1 साल में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी नहीं क्या? सर, क्या खराब डील है ये? Is it guaranteed? नहीं, मैं इट्स नॉट अबाउट द मनी, आई एम नो, मनी के बारे में बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट सेइंग देयर इज नो अदर वे टू करेक्ट योर सिस्टम। जी जी। अगर आप 1 साल में भी इस तरीके से करेक्ट कर पाए तो इट इज नॉट अ बैड डील। दूसरी चीज, somebody saying is it a guarantee? Yes, this is a guarantee, but this guarantee involves 2 people, one us, the other person is you. So how much, it depends on how much committed you are towards the yourself or towards the practice. सर जैसे हम लोग कुंभक करते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट, मतलब जैसे और तबीयत खराब या ऐसे कुछ तो नहीं होता ना? एक बात बताइए ना, कुंभक तो आपके शरीर का तरीका है ना, कहीं बाहर से तो नहीं लगा रहे इसे आप। मान लीजिए हम हाइपरटेंशन है तो फिर और बीपी बढ़ गया? नहीं, बीपी कई लोगों का ठीक हो जाता है। देखिए शुरुआत में जब आप एक्सरसाइज करेंगे ना तो भी बीपी बढ़ता है, फिर एक्सरसाइज मत करो, शरीर हिलाएंगे तो भी बीपी बढ़ता है, शरीर मत हिलाओ, दिमाग भी घुमाएंगे तो भी बीपी बढ़ता है, मालूम है, स्ट्रेस के कारण ज्यादा दिमाग में सोच लिया तो भी बीपी बढ़ता है। स्ट्रेस से तो होता है जी। हाँ, तो मत दिमाग को इस्तेमाल करो, ऐसा होता है क्या? दिस इज ऑल बेकार की चीजें, ये आपके शरीर का मैकेनिज्म है, इसी से ठीक होगा, इसी से ठीक होगा। आपको करना सही तरीके से है, बस वो आपको जानना है कि कैसे करना है, ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। प्रॉब्लम होगी भी नहीं, वो थोड़ी बहुत चेंजेस आने पे जो फर्क पड़ता है ना, उसको प्रॉब्लम नहीं समझना चाहिए। आपका शरीर कभी भी कुछ गलत नहीं करता, आप गलत कर सकते हो अपने शरीर के साथ में, ये बॉडी कभी भी गलत नहीं करेगा आपके साथ। Excuse me, Swamiji. Yeah, I have a question. Hello. Okay, thank you, sir. Excuse Thank you. me, Swamiji. I have a small question. हाँ जी, go ahead. So yeah, me and my wife, we are listening to this session, and it is quite interesting. इसमें a simple सा question है कि अगर suppose a person is following your process religiously and with complete discipline, तो इसमें what time it will take to make that person completely free from the thyroid? मैंने आपको बताया अभी कि it will take different amount of time for different people because every system is different. So what conditions you have got yourself into, according to that, it will take. But see, benefits happen from the first week itself. 1 हफ्ता भी करेंगे आपको बेनिफिट दिख जाएगा इसका, 3 महीना करेंगे तो फिर छोड़ नहीं पाएंगे इसको। That much of benefit you will get. आपको इतना फायदा होगा वो आपका शरीर बताएगा, एक दिन छोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा नहीं मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। So to completely come out of the condition, it might take different amount of time. There are people who have thrown away medicine in the first month. There are people who dropped their medicine in 3 months, and there are also people
who do it religiously for 1 year and they drop all their medicine. Not just the स्वामी जी, first I'm half. asking, my question is कि कुंभक थेरेपी को कितने टाइम करना पड़ेगा लाइफ में? पूरी लाइफ चलेगा ये कि we will leave it after 6 months or 1 year? आप इसे छोड़ सकते हैं. Once you are fine, आप इसे छोड़ सकते हैं. But how much time you can hold on to that kind of a strength is a question. So maybe 2 साल, 3 साल, 4, क्योंकि अभी भी आप ठीक ही थे ना पहले तो. Now you have got into problem now because you have lost the strength of some functioning. तो अगर आप उसको वापस strong कर लेंगे, so there is always a chance that you will lose that strength after some years. लेकिन फिर आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं ना. You can again start and do your कुंभक and get fine. वो रिकॉर्डिंग्स और वो सारी नॉलेज आपके पास में हमेशा रहती है. सो एक्सेस टू दोज वीडियोस व्हिच आर मेड फॉर योर इंडिविजुअल ट्रीटमेंट. So it does not guarantee the permanent cure from thyroid, right? That is permanent cure ना. जब आप दवाई नहीं ले रहे, नहीं होगा ना फिर वो. जब एक बार थेरेपी कर ली, वो ठीक हो गया, मेडिसिन भी छूट गई, इसको कुंभक थेरेपी भी छोड़ दी, उसके बाद फिर से हो जाएगा. हाँ, तो आप अब ये कह रहे हैं कि इट कैन नॉट बी गारंटीड कि जन्म लेने के बाद में इंसान बीमार नहीं हो सकता. आप यही कह रहे हैं ना कि जन्म लेने के बाद में अगर बीमार हो जाता है तो जन्म लेना गलत हो गया. नहीं, that is altogether different thing. मतलब we cannot compare. नहीं, आप वही कह रहे हैं ना. You were healthy at some point of time. Why you have got into this disease? My point is we took the therapy and it gives a positive result, right? Fine. Okay, we leave the medicine and we leave the therapy also. The organ is now fit and fine, right? And उसके बाद से तो मतलब it should not be a problem. हाँ, it depends on you ना. It depends on you. इससे पहले भी तो organ fine था disease में आने से पहले. थोड़ा इसका मैं जो स्वामी जी कहना चाह रहे हैं वो मैं थोड़ा सा आपके हिसाब से बता देता हूँ सर. So what Swami is trying to say is that so your body and your functional ability to not get into a thyroid situation would be now there could be environmental conditions which after 2 years, 3 years, 4 years, 20 years, देखिए 1.5-2 साल तक का तो हमारे पास में डेटा है. As in people who have in past 2 years, 3 years, they have not got into remission. कोई भी कंडीशन में तो वो अगर कुंभक थेरेपी के हेल्थ से बाहर आ पाए हैं तो वो बाहर ही हैं. हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप की सिचुएशन टेम्परली, जैसे खाने पीने के डाइट के प्रोग्राम से होता है, कोई भी डाइट का प्रोग्राम हो, वेदर इट इज फॉर डायबिटीज और थायराइड और एक्स और वाई एक्सेट्रा, जब तक आप करते हैं तब तक यू आर बेनिफिटेड. द मोमेंट यू लीव इट विद इन अ स्पैन ऑफ लेट्स से 1 month or 2 months or 3 months, यू आर बैक टू wherever you started from, whatever kind of dietary program it is there. So if our comparison is made between that and what we are trying to do in Kumbhak therapy, the solution is permanent. If you're trying to compare with allopathy and any other medicinal, जिसमें भी medicines रहती हैं, then again the solution is permanent. But if you're trying to take a guarantee that no matter what I do with my life, my lifestyle, this, that, I am invincible for thyroid conditions, then that solution is that statement is something which only God can. नहीं चलो वो तो you are absolutely right, but we are not those kind of people. We are very disciplined otherwise in our lives. So उसमें ये दिक्कत आने नहीं चाहिए दोबारा से other which way, right? And second, and there is one last. Yeah, okay. We are making a blanket statement that it is possible for you to get into a similar situation if you subject yourself to the kind of environmental conditions which led you to the problem. So if you are again subjecting yourself to environmental conditions which created the problem in the first place, after 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, it is not impossible to get into a problem again. But the solution is permanent. In whichever way you classify permanency of solution in modern ways of talking. Okay. I hope. I have a question. Hello. Go ahead, Ramesh. Yeah. Is there any shift available besides morning shift? Because why I'm asking, I'm working night shift and I sleep at 4:30. So is there any other shift which I can join? The sessions are at both 7 a.m. in the morning and 7 p.m. in the night. Okay. And there are recordings available and PDF instructions available, and there is a continuous mentor support within the program group. So with mentors, you can work with them individually if you have a concern
whether it is a video session you want to have or a phone call or a WhatsApp, those people are available to support and help you. Okay, are they available for this morning to evening, or No, is there any fixed time? No. It's mutual convenience. These are individuals. These guys are volunteers, patients like yourself. So they are there to guide and support you. They are not on payroll, structured payroll. No, I understand that. Volunteers, I understand. I'm also a volunteer. I understand that. So that's how it is, sir. So mutual convenience, whenever you are having convenience of time and the other person is having convenience of time, they support you. So that support is there, continuous. There is not one mentor. There are a bunch of mentors available within a particular program group. So whosoever you build a rapport with, whosoever you are comfortable with, you can, work with them. That means if I miss the morning shift, I can, morning program, then recording is available there, right? Recording is there. PDF instructions in both Hindi and English, they are there. Sure. Recording is kept in a login, which login resides with you for an entire lifetime. It will be available on your website, or you will send us on WhatsApp? It will be available on a third-party platform, and that login would be created specially for you, for your prayers, your practices, and login would reside with you, will remain active for you for an entire lifetime. All right. So what is the mode of payment? Is it a credit card or any? So all modes are there: UPI, credit, debit, and we'll again share a message in the WhatsApp group as well as here as well, so that you can go ahead and do the needful. Thank you, Swamiji. Thank you, sir. Prakash ji, आपके बहुत सारे सवाल हैं. If you can, because it's difficult to go through all your questions and answer one by one. If you can unmute yourself and ask your question directly. I am assuming that your questions are fully answered. All right, others, आप लोगों के. Hi, I'm Prakash. हाँ जी. मैं पूछना चाहता था, let's say in a batch we are 50 or 60 or maybe 100 participants also. So as Swamiji told us, each participant will be examined individually on the basis of what caused his disease or his abnormality. So if I am sitting in a session of 1 hour, so how would he identify the root cause of each participant? That is my one question. You will have to fill up a diagnosis form. As you will enroll for the program and come to the first session, the first session will be a little preparation session where we will prepare you. The second session will be little advanced, and then the third session will have customization. We will tell you the customization. In between these 3 sessions, there is a 2-week period. In between that, you will have to fill up the form and send it to us. So I'll sit on each person's form individual. Spend certain amount of time where you have to send a photograph also. Spend a certain amount of time to diagnose you, to fix your whatever you are learning side by side. I'll fine tune the whole module, give you the customized module and additional things if it is needed. And in the third session, before the third session, the whole PDF of your customization will be shared with each one of you, be it 100 people or more. And in the session, I'll explain you what you have got, because you have been trained into it for the last 2 weeks. So you know certain practices. There are new practices which I'll teach you. And that's how we do go about doing the customization. If you have interest, depending upon the plant Shakti diagnosis. remaining. ये अपना नंबर का टाड़ा. Miss Poonam, do you have a question to ask, ma'am? All right. Others, do you have any further questions? आप लोगों में जिनका interest हो, जिनका जो program join करना चाहते हो, या if you have any queries remaining, please make sure that you share your phone numbers with us, so that our team can reach out to you and we can guide you. We have also shared our team's counselor's number as well. So you can reach out to that person. You can call them now if you have important things to do. I'm sure khane peene ka time and dinner time is there. So you can call this number, which is flashing on to your group chat basically.
So 962558657. So you can reach out to this person. Name is Deepak. So 962558657. So you can reach out to Deepak and you can have a discussion and take a judicious call on how it is and so on. थोड़ा सा मैं बस एक चीज पे फोकस जरूर करना चाहता हूँ. On many of you had a question regarding classes कैसे चलेंगी, कब टाइमिंग्स है. रमेश जी आप हो यहाँ पे for you specifically and for many others. So there are a lot of sessions which are happening with convenience. So both morning and evening. So there are 3 important learning sessions which happen at 7. Read this as 7 till 8:30 a.m. in the morning. So you do get a recording and everything. तो वो सारी चीजें तो रहती ही हैं, but there are 3 sessions which happen on a specific time. So the time, by the way, or time and day rather, so it would be on a Thursday 7 a.m. So these 3 sessions would be happening on Thursdays. Thursdays for 7 a.m. starting from 19th. So 19, then 7 days after that, 26th and so on. In between these weeks, there would be practice sessions, first one at 7 a.m., then 7 a.m. and 7 p.m. in the evening. Then 7 a.m. 7 p.m. So all of these sessions are there. This happens in the learning phase. Then in the second phase, again, there are a bunch of sessions, both morning and evening, etc. These sessions keep on having. And then finally, a session with Swamiji himself. Then in the third phase, which is wherein we advise you how to understand your symptoms and start leaving your medicine step by step. तो वो sessions भी आपके उस phase में, again, there are weekly sessions which keep on happening from week 8 to week 12. So basically essentially third month. So therein we advise you how to track your levels, understand your symptoms, how to step by step come out of medicine. So this would be the third month. So this is post Mandala phase. Then after these 3 months, there are still monthly sessions if your condition is not fully recovered. So monthly sessions hote hain and they continue till the point 3 things are completely met. What are those 3 things? Medicine should be completely gone. Symptoms should be completely gone. Many people are asking this question. Kumbhak therapy need not be done lifelong. Once your body recovers, you are able to attain the full functionality of the systems or the processes which have gotten weakened. You can also leave Kumbhak therapy for good, but you would enjoy it. I mean, most people enjoy it, so they continue. So it is not going to have any harm. So if you want to continue, you continue. If you want to leave, you can leave. And in case many of you are having questions, let's say 5 years, 10 years, 20 years down the line, you start feeling similar symptoms popping up again because of the environmental conditions, you have subjected your body again to that, or your body has further weakened, then your kriyas for your individual body has, जो आपकी innate nature है, the kind of functional weaknesses you get into, उसके हिसाब से आपकी practices already आपको दी जा चुकी हैं in your recording, which is there for you with you for your lifetime. So you can pick up those practices again and do them again, and again come out of your condition. You don't have to come to us. Basically, it's a membership of sorts. You become part of a family, larger family. That's how it is. So this is a one time, right? Yeah, this is one time. Okay. This is one time. Definitely, it is one time. So please make sure, Ramesh ji, aap and others who are interested, please share your phone numbers. And I think the message, you're part of a WhatsApp group, right? Yes, I am. Okay, awesome. So you'll receive the message as well. Nothing more to share and discuss other than if there are any questions remaining. All right. So we'd love to welcome you in our program starting 19th. And we would love to take any and all of your questions, whichever they are or whatever they are. So please feel free to reach out to us. I'm sharing the number again for the one last time. So you can reach out to Deepak, who is our program counselor. So his number is 962558657. And we would love to, talk to you and advise you and guide you accordingly. Thank you so much. Good night. Namaskar.